हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर इन पावर। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइए पहले उसके फॉर्मूला देखते हैं। उसमें क्या हमने लिखा था? that if z is equals to ab, delta z upon z is equals to delta a upon a plus delta b upon b. Yes, we have seen that. And for division, what we have seen? If z is equals to a upon b, then also delta z upon z is equals to delta a upon a plus delta b upon b. That we have discussed. Okay, that we have discussed in the previous session, and we have derived it also, and we have calculated two examples also. Now what? See, I want to take z is equals to a into a. Okay, here what we have taken? Z is equals to a into b. Now here I want to take z is equals to a into a. So what will be the answer? Means delta z upon z will be is equals to, see carefully, delta a upon a plus delta a upon a. So what will be the answer? 2 delta a upon a. Right. Suppose I take z is equals to a into a, means I am multiplying a 3 times. Then directly I think you can give the answer that delta z upon z is equals to 3 delta a upon a. Okay. Let me take one more example. Z is equals to a into b upon c into c. Right? So what we can write? We can write like this. Therefore, delta z upon z is equals to delta a upon a plus delta a upon a plus delta b upon b plus delta c upon c plus delta c upon c. Remember, where whatever takes place, is it your multiplication or division? Okay, always you have to add the error. Why? Because this is the maximum error. Maximum error. Okay, and because we are dealing with the maximum error, always we have to add. Okay, always what we have to do? We have to add them, whether it is in division or in a multiplication. See that C are in the division. If it is in division, then student mostly makes confusion that here it should be the minus, but no, always there will be the plus. Okay, so if we simplify it, what we will get? Delta A upon A plus delta A upon A. So what will be the answer? 2 multiplied by delta A upon A, right? Then after delta B upon B, it is 1 only, one term. So delta B upon B, and delta C upon C 2 times. So what we can write? 2 times delta C upon C. So what we observe here? This is the power rule or error in the power. So let me write that statement. If A is raised to n, A is raised to n पावर, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, मीन्स z इज इक्वल्स टू a रेज टू n.
तब अब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आप दिमाग में बिठा लीजिए। जो एन है वो आगे चला आएगा, आगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए ए इंटू ए है तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर आएगा। ए है तो क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। या तो यहाँ पर अगर देखिए ए इंटू ए है तो ए स्क्वेयर आएगा इंटू बी अपॉन क्या आएगा, सी स्क्वेयर आएगा। तो अच्छी तरीके से आप देखिए, देखिए ये स्क्वेयर था तो ये आगे 2 आ गया ना। ओके, ये क्यूब था तो आगे 3 आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था पहले तो आगे 2 आया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था, पावर 1 था तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर पावर कितना था, 2 था तो आगे 2 आ गया। मतलब कि जो भी पावर है वो आगे चला आएगा। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला टू डिस्कस एरर इन द पावर। मतलब कि पावर क्या आ जाएगा, जितने टाइम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई है उतने टाइम उसकी एरर भी ऐड होगी। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं आपको ऐसा एग्जांपल एक देता हूँ, देखिए अच्छी तरीके से। इफ z is equals to a raised to m multiply by b raised to n divided by c raised to p। ठीक है, कैलकुलेट वन फ्रैक्शनल एरर in z and second परसेंटेज एरर इन z। ओके, एक बात याद रखें, यहाँ पर एक थोड़ा सा और भी दिया है, परसेंटेज एरर इन a इज इक्वल्स टू सोचे x है, कितना है x। परसेंटेज एरर इन b, कितना परसेंटेज एरर है उसमें, सोचिए y है। परसेंटेज एरर इन सी, उसमें सोचिए w है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। आइए सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें। देखिए z इज इक्वल्स टू क्या है, आप अच्छी तरीके से देखिए और सबका पावर भी देख लीजिए। सबका पावर सेम है क्या, नहीं, सबका पावर सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, देखिए ये m है तो m आगे चला आएगा, m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a अपॉन a प्लस यहाँ पर n आगे चला आएगा, n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b प्लस यहाँ पर p आगे चला आएगा, p मल्टीप्लाई बाय डेल्टा c अपॉन c। ठीक है ना। तो ये डेल्टा z अपॉन z ये है, ये जो पहला हमारा क्वेश्चन था ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शनल एरर इन z। ठीक है, अभी देखिए दूसरा हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर इन z। परसेंटेज एरर इन z निकालने के लिए हमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, प्लस n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस p मल्टीप्लाई बाय डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर इन z। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर इन a प्लस यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर इन b प्लस यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर इन c। ठीक है, ओके। अब परसेंटेज एरर इन a हमें कितना दिया है, अच्छी तरीके से देखिए, x दिया है, और ये परसेंटेज एरर इन b y दिया है, और परसेंटेज एरर इन c क्या दिया है,
W दिया है तो आगे इसको रिप्लेस करें, ये x दिया है, परसेंटेज एरर इन B क्या दिया है, y दिया है, और परसेंटेज एरर इन C क्या दिया है, W। सो दिस इज द आंसर ऑफ परसेंटेज एरर इन Z। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम थोड़े और एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरीके से देखिए कि क्या आपको समझ में आया है अच्छे तरीके से कि क्या परसेंटेज एरर होती है और कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं इसको। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, एंड r, व्हाट इज r, r इज रेडियस। मतलब कि वो जो कोई भी बॉडी है वो ऐसे सर्कुलर में घूमती है तो उसके ऊपर ऑलवेज एक फोर्स लगता ही है। जब भी ऐसे सर्कुलर मोशन आएगी तो एक फोर्स ऑलवेज उस पे लगता है, कौन सा, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे जिसका मास कितना है m, जिसकी वेलोसिटी कितनी है v, और कितने सर्कल के मतलब कितने रेडियस की सर्कल में वो ट्रैवल कर रहा है, r रेडियस की सर्कल। ठीक है, अभी हमें ऐसा दिया है, मास दिया हुआ है, उसका मास दिया है 3.5 प्लस और माइनस 0.1 किलोग्राम मास है ऐसा। ठीक है, फिर वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी क्या दी है हमें, वेलोसिटी इज गिवन एज 20 प्लस और माइनस 1, 20 प्लस और माइनस 1 मीटर पर सेकंड, और रेडियस भी दी गई है 12.5 प्लस और माइनस 0.5 मीटर। ठीक है ना, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वन फ्रैक्शनल एरर। ओके, पहला मिल गया फ्रैक्शनल एरर, और दूसरा फाइंड करना है परसेंटेज एरर। ओके, इन एफ। तो क्या आप रेडी है मेरे साथ? पहले पॉज करके अपनी ओर से ट्राई कीजिए अच्छी तरीके से, तो पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा एफ अपॉन एफ। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, आप सोचिए, इज इक्वल्स टू आएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम ये है बच्चों, ये क्या है, डेल्टा एम कितना है 0.1 अपॉन 3.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी क्या है, ये डेल्टा वी है तो 1 अपॉन 20 प्लस डेल्टा आर क्या है, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा 0.5 अपॉन 12.5। सो अगर आप इन सारे सम को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.17। ठीक है, ये क्या हो गई, परसेंटेज एरर हो गई, सॉरी फ्रैक्शनल एरर हो गई। अब परसेंटेज एरर सॉल्व करते हैं, परसेंटेज एरर इन द फोर्स। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पर हमें ये मिल गया है तो डायरेक्टली वी कैन डू लाइक दिस, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100। सो 0.17 इंटू 100, तो कितनी आ गई परसेंटेज एरर, 17%।
और देखिए एक अगर हमें एफ है तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट वैल्यू ऐसी हो सकती है ना, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभी मास में अब सोचिए कि ऐसा है 3.5, वेलोसिटी कैसी है 20, और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 12.5। तो ये सारी अगर वैल्यू आप रिप्लेस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 112 न्यूटन। सो अगर हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एरर के साथ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0.17 है ना, तो इससे हमें डेल्टा एफ मालूम पड़ सकता है, डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा एफ इंटू 0.17, तो एफ कितना है 112 इंटू 0.17, तो 112 इंटू 0.17 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19 न्यूटन। तो अगर हमें एफ को रिप्रेजेंट करना है तो करेक्ट वैल्यू पहले लीजिए 112 प्लस और माइनस कितनी एरर है उसमें 19, ठीक है, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह एग्जाम्पल सोल्व किए जाते हैं। क्या किया हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखिए, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, तो हमने पावर रूल लगाया, सारे की एरर आ गई। यहाँ पर देखिए एम का पावर 1 ही था तो सिर्फ आगे 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वी का 2 पावर था और आर का भी 1 पावर। फिर यहाँ पर जो मिली, जो प्लस और माइनस के बाद होता है वो डेल्टा वाली वैल्यू एरर होती है, और जो एम वी और आर ये जो परफेक्ट वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू होती है, वो ये होती है। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर और रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर लिया, ठीक है ना। एक बार आप पॉज करके अच्छी तरीके से देखिए, या तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, फ्री में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है, side of cube is measured as a is equals to 7.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये साइड है। हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो देखिए क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला लगाए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक क्यूब होगा। तो डायरेक्टली एक क्यूब नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए। तो देखिए 3 डेल्टा ए कितना है 0.1 और ये कितना है 7.5। तो अगर आप ये करोगे 3 इंटू 0.1 अपॉन 7.5, then your answer will be 0.04। ओके, और करेक्ट वैल्यू पहले देखते हैं। करेक्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए क्यूब, ए क्यूब आएगा। मैंने का मतलब क्या है 7.5 का हमें क्यूब करना पड़ेगा, 7.5 का क्यूब करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 422, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये v हो गया ना, तो डेल्टा v अपॉन, देखिए ये v है तो इस v की वैल्यू में यहाँ पे रखता हूँ, और ये कितनी वैल्यू है 422, तो 422 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0.04, तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू 422, तो 0.04 इंटू 422 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 17 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल्स टू पहले करेक्ट वैल्यू प्लस और माइनस 17 cc, ठीक है। क्या किया हमने, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए,
तो हमने पहले डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए कर दिया, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हमें मिल गया कितना 0.5 0.04। फिर करेक्ट वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, तो ये होती है करेक्ट वैल्यू, तो उसको वैल्यू रिप्लेस की तो हमें करेक्ट वॉल्यूम पता चल गया, करेक्ट वॉल्यूम को यहाँ पर रख दिया v में। सो एंड देन आफ्टर रिप्लेसिंग व्हाट वी गॉट, व्हाट इज द एक्चुअल एरर इन द डेल्टा v। ठीक है, देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही आपका ये कंसेप्ट है, कैलकुलेशन करने की जो मेथड है वो स्ट्रॉन्ग हो गए अच्छे तरीके से। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल ऐसा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, उसका टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता होगा शायद, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है, टी क्या है टाइम पीरियड, L क्या है लेंथ ऑफ पेंडुलम, ऐसा नहीं होता, ये है बोब, ठीक है ना, तो यहां से लेके इसके सेंटर तक ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और G क्या है, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे जब हम ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पर ये फॉर्मूला बहुत एक्सटेंसिवली हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, टाइम पीरियड मेजर किया गया, ठीक है ना, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम है 10 सेंटीमीटर। ओके, L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm एक्यूरेसी। कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा एल कितना है 1 mm, आप ऐसा लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ को ऐसा मेजर किया गया, ठीक है ना, और पीरियड, टाइम पीरियड ऐसा है, टाइम पीरियड मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड कितना है 0.5 सेकंड। तो ऐसे 100 ऑसिलेशन किए गए, फॉर 100 ऑसिलेशन किए गए, ठीक है ना, और क्या किया गया, that time of 100 oscillation is measured with a watch of a 1 second resolution. For 100 oscillation time is measured, time period is measured by a clock of 1 second resolution। कितना 1 सेकंड रिजोल्यूशन, तो कहने का मतलब क्या है कि एरर इन टाइम कितना है 1 सेकंड। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एक्यूरेसी is present in G, ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ द G। ठीक है ना, तो आप अच्छी तरीके से पहले एग्जांपल को देखिए, क्या दिया है, हमें टाइम पीरियड दिया है, ठीक है, फिर हमें लेंथ की मेजरमेंट भी दी है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि उसमें एक्यूरेसी कितनी आएगी, किसमें, जी में कितनी एक्यूरेसी आएगी, कितनी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है ना, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, वी वांट G means delta G upon G into 100 is equals to what, that we want to find out। ठीक है ना, परसेंटेज एक्यूरेसी हम फाइंड करेंगे। तो हमें पहले तो फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों, अच्छी तरीके से देखिए, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। मैं आपको बोल दूं, ये एग्जांपल JEE और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। सो G इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर।
तो देखो ये 4π² है, ये कैसी वैल्यू है, ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। और एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, एरर इन कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा जी अपॉन जी करें इज इक्वल्स टू डेल्टा इन 4π² अपॉन 4π² करें प्लस डेल्टा एल अपॉन एल करें प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी अपॉन टी करें। आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है ना। और ऐसा मत सोचे कि π² है तो आगे 2 आ जाएगा, पहले ही इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दिया है डेल्टा एल प्लस एल 2 डेल्टा टी अपॉन टी, और हमें क्या मालूम करना है, डेल्टा जी अपॉन जी। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा एल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, एल कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डेल्टा एल और एल है, लेकिन टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है, वो हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम था, फॉर वन ऑसिलेशन 0.5 सेकंड, ठीक है ना। और ऐसे कितने ऑसिलेशन किए गए, फॉर 100 ऑसिलेशन, तो कितना आएगा, एक ऑसिलेशन के लिए 0.5, तो 100 ऑसिलेशन के लिए कितना आएगा, आप देखिए 50 सेकंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो रिप्लेस कर सकते हैं। डेल्टा एल हमें क्या मिला था, 0.01 अपॉन 10 प्लस 2 डेल्टा टी क्या था, मैंने गलती कर दी, 1 सेकंड था, डेल्टा टी कितना था, 1 सेकंड, ओके। और ये टाइम कितना मिला हमें, 50। सो 0.01 नहीं है, 0.1 है, क्योंकि 1 mm है तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा ना। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, 0.01 प्लस 0.04, so it is a 0.05. so delta g upon g is equal to 0.05. so percentage error in the g is equals to delta g upon g into 100 is equals to 0.05 into 100 is equals to 5%। अच्छी तरीके से देखिए, ये टाइम पीरियड वाला जो मसला है ना, ये हर बार आपको कंफ्यूजन में डालेगा, तो इसको अच्छी तरीके से देखिए। क्या होता है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखिए कि टोटल टाइम इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम पीरियड होता है। तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू n, तो वही रहेगा, सॉरी n तो कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो अगर हम देखो इसको एरर के तौर पे ले अगर, तो डेल्टा एन अपॉन एन और डेल्टा टी अपॉन टी, तो डेल्टा एन अपॉन एन, डेल्टा एन, एन तो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा टी अपॉन टी। तो इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और ये डेल्टा टी अपॉन टी जो हमें मिला, ये डेल्टा टी अपॉन टी, तो ये हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी अपॉन टी, और ये इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन टाइम्स टी आएगा। सो एन कितना हुआ था हमारा, एन हुआ था 50 और टाइम पीरियड कितना हुआ था 0.5, तो यहाँ से 50 नहीं हुआ था, सॉरी 100 हुआ था। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस एग्जाम्पल, ओके, इट्स वेरी सिंपल। आइए एक और एग्जाम्पल भी देखें।
जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरीके से ग्रिप आएगा। P is equals to a cube b square divided by root c into d, ठीक है। और a परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c एंड परसेंटेज एरर इन d, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 1, 3, 4 एंड 2, मतलब कि ये 1% है, ये 3% है, ये 4% है और ये 2% है। हमें फाइंड क्या करना है? परसेंटेज एरर इन पी। सो इट्स वेरी सिंपल। देखिए, पहले आप पॉज करके अपनी ओर से ट्राई कीजिए। परसेंटेज एरर इन पी क्या हो जाएगा? तो देखिए, इट्स वेरी सिंपल। पहले आपको ये पावर रूल जो हमने आज डिस्कस किया है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये देखिए, ये रूट सी है, तो रूट सी है तो रूट सी का मतलब क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। रूट सी इज इक्वल्स टू सी रेज टू 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा डी अपॉन डी। तो अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन ए, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन बी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन सी प्लस डी का तो कोई पावर ही नहीं था, इसीलिए डायरेक्टली परसेंटेज एरर इन द डी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन ए कितना था बच्चों? 1। 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन बी कितना था? 3 प्लस हाफ परसेंटेज एरर इन सी 4 प्लस परसेंटेज एरर इन डी 2। तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, सो 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, तो कितना आ गया? 13%। ठीक है। तो इस तरह अगर आप पावर रूल के एग्जाम्पल अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है ना, तो आपको मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे के सेशन में हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ तक हम खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।